پی ٹی آئی حکومت نے عوام کو سبز باغ دکھائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں 2014 کے پی ٹی آئی دھرنے میں پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان نے حملہ کرنے والوں کو شاباشی دی۔ عمران خان کے سب جھوٹ بے نقاب ہو جائیں گے۔ مسلح افواج پر فخر، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت، گارڈ آف آنر کا معائنہ۔ کہا پاکستان نیول اکیڈمی دوست ملکوں کے کیڈٹس کو بھی بہترین تربیت فراہم کر رہی ہے۔ کیڈٹس پاکستان کے سفیر کے کردار کا ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو بھی شریک۔ وزیر اعظم کا آصف زرداری کی والدہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار۔ چین نے امداد فوج کے کہنے پر دی، وزیر اعظم کو تو 100 روپے نہیں ملتے۔ شیخ رشید کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 30% بڑھ گئی۔ صنعتوں پر سپر ٹیکس اور دکانوں پر 10 سے 40 ہزار فکس ٹیکس ظالم ہے۔ سیاسی لوٹوں کو ادائیگی ڈالرز میں ہوئی۔ ہر کوئی گوادر میں سنگ بنیاد رکھتا ہے لیکن تعمیرات نہیں کرنے دی جاتی۔ پاکستان پر مسلط استعمار، آئی ایم ایف کے غلاموں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں باہر کی کمپنی سے مہنگے داموں معاہدے کر کے ملک کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان جل رہا ہے، ان حکمرانوں کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ منشیات برآمدگی کیس کا معاملہ، رانا سنالا کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج نعیم شیخ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں شریک ملزمان نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ سماعت 23 جولائی تک ملتوی۔ سندھ بلدیاتی انتخابات، 14,728 امیدوار مد مقابل۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی پولنگ 24 جولائی کو ہوگی۔ انتخابی شیڈیول کے مطابق 25 جون تک اپیلوں پر فیصلے ہوں گے۔ 27 جون کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری ہوگی۔ اور کرونا کے بار مزید تیز، مثبت کیسز کی شرح 3% سے بھی تجاوز کر کی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 13,644 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، مزید 435 کیس رپورٹ ہوئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث علی حمزہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس اہم خبر کے ساتھ۔ پی ٹی آئی حکومت نے عوام کو سبز باغ دکھائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں 2014 کے پی ٹی آئی دھرنے میں پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان نے حملہ کرنے والوں کو شاباشی دی۔ عمران خان کے سب جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 2014 کے پی ٹی آئی دھرنے میں پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان نے حملہ کرنے والوں کو شاباشی دی۔ عمران خان کے سب جھوٹ بے نقاب ہو جائیں گے۔ کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود، میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں۔ میں نے کہا اچھا، تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے۔ ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں، شو کوز دے دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے، اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے، جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے، یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں اگریمنٹ کو بچانے کے لیے اور سائیڈ کرنے کے لیے تھا پی ٹی وی کا، کیونکہ پی ٹی وی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اس کو لیگلائز کیا جائے، اور جو کورٹ میں لوگ اس کو لے کر گئے ہیں اس میں پی ٹی وی اس حکومت کے آنے سے پہلے اس معاہدے کو لیگلی پروٹیکٹ کر رہا تھا۔
لیکن جس وقت یہ معاہدہ ایک کورٹ کا معاہدہ ہے جو کہ کورٹ میں کیس ہے اور اس میں پی ٹی وی کا سٹانس بدل چکا ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس جو اس وقت سبمٹ کیے گئے ہیں اور جو لائر ہے, جو لیگل اوپینین ہے, جو ہمارے اس وقت کاؤنسل ہیں, انہوں نے کورٹ کے اندر اپنا سٹانس اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, ان تمام ثبوتوں, ان تمام چیزوں کے, اور اس پہ ابھی ہیئرنگ جاری ہے. جو پی ٹی وی کا معاملہ اس ڈیل کا ہے, یہ انلیگل ڈیل ہے, غیر قانونی ڈیل. اور آپ نے جو بات پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ 75 دنوں میں ملک نے صرف تباہی دیکھی. شہباز شریف کو سرخی پاؤڈر لگا کر بتایا گیا کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن وہ بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں. ملک میں کرپٹ مافیا اقتدار میں آ کر بیٹھ گیا ہے. فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ 75 دنوں میں ملک نے صرف تباہی دیکھی. شہباز شریف کو سرخی پاؤڈر لگا کر بتایا گیا کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن وہ بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں. ملک میں کرپٹ مافیا اقتدار میں آ کر بیٹھ گیا ہے. جو کہ نام کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, بلکہ حقیقت کے اندر جو 75 دن میں انہوں نے کیا ہے, یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ بن چکی ہے. یہ پاکستان تباہی اتحاد ہے جو اس ٹائم حکومت میں آ گیا ہے. اور شہباز شریف جس کو یہ بتایا گیا, برانڈ کیا گیا, سرخی پاؤڈر لگا کر یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف بڑے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, جبکہ پاکستان پچھلے 30 سالوں میں اسی زرداری, اسی شہباز نواز. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ریئل اسٹیٹ کے بروکرز, بلڈرز, کار ڈیلرز, ریسٹورنٹ اور سیلونز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان کر دیا. اپنے ٹویٹ میں وزیر خزانہ نے لکھا کہ ہم مرحلہ وار لاکھوں دکانوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں. میں جیولرز کو نیٹ میں لایا ہوں اور یقین رکھیں کہ میں اگلے چند ماہ میں ان تمام پیشہ ور افراد کو نیٹ میں لے آؤں گا. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ چھوٹے دکانداروں, جیولرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے میں نے ایسوسی ایشن سے بات کی ہے اور یہ فیصلہ ان کی مشاورت سے کیا ہے. اب میں ریئل اسٹیٹ کے بیوپاری, بلڈرز, ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپرز, کار ڈیلرز, ریسٹورنٹس اور سیلونز وغیرہ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کروں گا, لیکن اس میں کچھ بھی زبردستی نہیں ہوگا بلکہ مشاورت سے کیا جائے گا. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت ایک اسکیم کے تحت ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتی ہے. عوام اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی ہے. کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں 90% سے زائد ووٹرز نے الیکشن مسترد کر دیا, جبکہ حالیہ گیلپ سروے میں 76% لوگوں کی رائے ہے کہ انتخابات واحد راستہ ہیں, اور یہی درخواست تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ کراچی کی عوام نے ضمنی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے, جبکہ حالیہ گیلپ سروے میں 76% لوگوں کی رائے ہے کہ انتخابات واحد راستہ ہے, اور یہی درخواست تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں جھگڑا, ڈپٹی اسپیکر پر تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں اہم پیش رفت. پی ٹی آئی رہنماؤں کو ضمانتیں مل گئی. لاہور کی سیشن عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان, مسرت جمشید چیمہ, سمابھیا, آبدہ راجہ اور شاہدہ ملک کی عبوری ضمانتیں کنفرم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. ایڈیشنل سیشن جج یاسین موہل نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. ملزموں کی جانب سے وکلاء نے دلائل مکمل کیے. دوران سماعت تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں, ان کیسز میں ہمارا کوئی کردار نہیں. عدالت سے استدعا کی جاتی ہے کہ ملزمان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کرنے کا حکم دیا جائے. دلائل مکمل ہونے کے بعد سیشن عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں کنفرم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. عوامی مسلم لیگ کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ چین نے امداد فوج کے کہنے پر دی, وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر تو 100 روپے نہ ملتے. سربراہ عوامی مسلم لیگ نون عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا کہ مہنگائی کی شرح 30% بڑھ گئی, صنعتوں پر سپر ٹیکس اور دکانوں پر 10 سے 40 ہزار فکس ٹیکس ظلم ہے.
सियासी लोटों को अदायगी डॉलर्स में हुई। हर कोई गवादर में संगे बुनियाद रखता है लेकिन तामीरात करने नहीं दी जाती। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया है। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। गरीब के खिलाफ 15 रोज से गला घोंट दिया जा रहा है लेकिन IMF भी फैसला नहीं कर रहा। अब सांस लेने पर भी टैक्स लगाना बाकी है। जमात इस्लामी के महंगाई ट्रेन मार्च की हमायत करता हूं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक के बाद दूसरा तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर एतराजात के साथ वापस करना अफसोसनाक अमल है। शेरी रहमान ने कहा कि बहसीयत रुकने पार्लियामेंट मुझे सदर अलवी के जानिबदार रवैये पर गहरी तशवीश है। PTI के सियासी मकासद के लिए सदर अलवी ने आईनी मनसब का गैर जरूरी फायदा उठाया। इमरान खान के दौर में उन्होंने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाकर रखा था। अब सदर अलवी पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून पर भी जाती एतराजात लगाकर वापस भेज देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आरिफ अलवी मुल्क के नहीं इमरान खान के सदर बने हुए हैं। इमरान खान को खुशनुदी के लिए वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल्स वापस कर देते हैं। तरमीमी बिल्स पर दस्तखत के वक्त सदर अलवी कहते हैं वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि पाकिस्तान पर मुसल्लत इस्तेमार और IMF के गुलामों का दौर खत्म होने वाला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बाहर की कंपनी से महंगे दामों मुआहदे करके मुल्क को तबाह किया गया। पाकिस्तान जल रहा है। इन हुक्मरानों के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। सिराजुल हक ने कहा कि PDM और PTI ने अवाम को नहीं माफियाज को नवाजा है। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में श्रीलंका, यमन, लीबिया की तरह खतरा है। पाकिस्तान के फैसले IMF के बंद कमरों में हो रहे हैं। मदीना की रियासत और एशियन टाइगर के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग है लेकिन बिजली का यूनिट 32 रुपए का हो गया है। किसानों और मजदूरों के खून पसीने की कमाई जागीरदार और सरमायादार हड़प कर रहे हैं। हुकूमतें आई और चली गई मगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाब शाह में आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इस मौका पर बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की और मरहुमा की बुलंदी के दर्जात के लिए फातिहा खानी भी की। इससे कबल कराची के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PF बेस फैसल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई जिसमें तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। इस मौका पर MPM का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा ने गवर्नर सिंध की जल्द तकर्री और मुआहदे पर अमल दरामद तेज करने पर जोर दिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम न होने के मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए माली साल 2022 से 23 का 163 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया गया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स के लिए 15% इजाफा किया गया है, जबकि अपोजिशन जमातों ने अरकान असम्बली के लिए ज्यादा तरक्याती फंड्स न रखने पर बजट इजलास का बायकॉट कर दिया। बजट वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने पेश किया। बजट में 1 खरब 35 अरब 20 करोड़ रुपए गैर तरक्याती अखराजात जबकि 28 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती बजट में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 2 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 15% इजाफा की भी तजवीज़ है। तरक्याती बजट में सेहत आमा के लिए 1 अरब 80 करोड़, तालीम के लिए 2 अरब 17 करोड़ और मवासलात के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
तनख्वाहदार तबके के लिए नए टैक्स तजवीज़ सामने आ गई, जिसमें 50,000 रुपए माहाना आमदनी वालों को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद होगा, जबकि 1 लाख से जायद और 2 लाख रुपए तनख्वाह तक 15,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स देना होगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए से जायद और 2 लाख रुपए तनख्वाह तक 12.5 माहाना टैक्स देना होगा। दस्तावेज के मुताबिक 2 लाख से 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 1,65,000 रुपए सालाना, जबकि 20% माहाना टैक्स देना होगा। वजीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइजर गोस हुटन की क़यादत में मुलाकात में GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती इक़दाम से वफद को आगाह किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर हो चुका है। लोकल गवर्नमेंट्स के नए निज़ाम में ख़वातीन, अक़लियतों और यूथ के लिए मखसूस नशिस्तों में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ख़वातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए हमारे साबिका दौर में जरूरी कानून साजी की गई थी। इंसदाद मनशियात अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मनशियात बरामदगी केस में एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के जज नईम शेख ने केस की समाअत की। अदालत में शरीक मुल्ज़मान ने पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल करवाई। राना सनाउल्लाह के वकला ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला कौमी असम्बली में सालाना बजट सेशन में मसरूफ़ हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो सकते। अदालत ने केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील्स दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से की गई नई नैब तरमीम को अदालत उस्मा में चैलेंज कर दिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से दायर की गई, जिसमें विफाक और नैब को फरीक बनाया गया है। PTI ने दरखास्त में वाक़िफ इख्तियार किया कि ख्वाजा हारिस नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त तैयार कर चुके हैं। नैब कानून के सेक्शन की तरमीम भी आइन के मुनाफी है। दरखास्त में कहा गया है कि नैब कानून में ये तरमीम आइन के आर्टिकल के बुनियादी हकूक के बरअक्स हैं। नैब कानून में की गई इन तमाम तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 65 दिन में हल्का बंदियां करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी की दरखास्त मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तवक्को है इलेक्शन कमीशन 65 दिनों में 101 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां करेगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि तवक्को है वफाकी हुकूमत और तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से ताउन ना हुआ तो कमीशन ये केस दोबारा खोलने की दरखास्त दे सकता है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोहम्मद सलाही के जमा कराए गए जवाबात में साबिक वजीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता। नवाज भट्टी चपड़ासी के अकाउंट से मुतल्लिक भी मालूम नहीं। मोहम्मद सलाही ने नवाज भट्टी के शेयर से मुतल्लिक भी नफ़ी में जवाब दिया। FIA के मुताबिक मोहम्मद नवाज भट्टी चपड़ासी के 32 अकाउंट्स हैं। साबिक वफाकी वजीर ने अपने जवाबात में कहा कि RY के ग्रुप बनाने में कोई किरदार नहीं, अलबत्ता उमर शहरियार से कारोबारी ताल्लुक है। भाई राकेश इलाही ने शेयर सोफे में दिए, जिससे एक्स कैपिटल लिमिट के जरिए शेयर्स हासिल किए। मोहम्मद सलाही ने मजीद कहा कि 18.63% शेयर्स इन्वेस्टमेंट करके ME कैपिटल लिमिटेड के जरिए लिए। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में 20 ममालिक के इजलास या तकरीब मुनक्कद करने के हवाले से खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किसी भी G20 ममालिक से मुतालिक इजलास या कोई तकरीब के इनेकाद पर गौर करना एक ख़यानत है।
जैसे बैन अल-अक़वामी बरादरी भी किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तवक्को का इजहार करते हुए कहा कि भारत की जानिब से ऐसी किसी मुतराज़ा तजवीज़ 7 दहाइयों से जारी गैर कानूनी और जाबिराना कब्जे के लिए बैन अल-अक़वामी कानूनी जवाज़ तलाश करने के लिए तैयार की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब में अंसार मुत्तहिदा मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन जुबैर अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, हमारे साथ जुबैर अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि मरकजी चेयरमैन हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के। आज इन्होंने बड़ी भरपूर एक कदम उठाया है, इसके लिए हम इनसे बात करेंगे कि ये अगला इनका क्या लाएमल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, गुजारिश ये है कि आज अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट ने पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त, हमारे सदूर यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे रूह रवां नवाज़ अंसारी साहब भी सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम बहुत से दिनों से सोच रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं और पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो हर रोज़ बढ़ता है। मजबूरी है पाकिस्तान की हुकूमतों की। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इमरान खान, नवाज शरीफ या क्या है, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जब एक इंसान जब फंस जाता है उसको निकलने के लिए वो हाथ पैर मारता है और अगर उसके हाथ पैर ठीक लग जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। हमारे अपने वसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है, प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो ये है कि ट्रस्ट लेवल नहीं है आवाम को किसी के ऊपर भी। आज हमने एक एजेंडा पेश किया है जिसमें आर्मी चीफ, ISI का सरबराह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चारों पांचों सूबे के वज़राए आला, मीडिया हेड्स, उसमें अपोजिशन लीडर बशमूल इमरान खान, उसमें सहाफ़ी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के 2 लोग, मतलब हमने कोशिश किया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बंदे शामिल करके एक कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी में 4 लोगों का एक अकाउंट खोला जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान। क्योंकि इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहने का मतलब है कि इनकी मुश्तरका गवर्नमेंट है इत्तेहादियों के साथ, तो इनका एक नुमाइंदा, अपोजिशन का एक नुमाइंदा, अदलिया का एक नुमाइंदा, आर्मी का एक नुमाइंदा। जब ये अकाउंट खुल जाएगा, जो पाकिस्तानी भी करोड़पति है वो अपनी जायदाद का 5% पाकिस्तान को बचाने के लिए देगा। वही सबसे पहले मैं हाजिर करूँगा, मैं पेश करता हूँ, मेरे तमाम एसेट्स डिक्लेयर हैं, वो 1 अरब के हैं, 2 अरब के हैं, 10 अरब के हैं, मैं 5% पाकिस्तान की सलामती के लिए देने को तैयार हूँ। जब ये मेक श्योर हो जाएगा कि ये पैसा वाकई पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रहा है, तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क है। PHA ने लाहौर में गैर मुल्की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर का बेड़ा उठा लिया। LDA की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर पर पाबंदी के खत को भी PHA ने नज़रअंदाज कर दिया। शहरी गैर कानूनी स्कीम्स की तशहीर से मुतासिर होकर उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे। PHA ने लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर का बेड़ा उठा लिया। LDA की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर पर पाबंदी के खत को भी PHA ने नज़रअंदाज कर दिया। शहरी गैर कानूनी स्कीमों की तशहीर से मुतासिर होकर उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे। PHA ने लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर का बेड़ा उठा लिया। LDA की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तशहीर पर पाबंदी के खत को भी PHA ने नज़रअंदाज कर दिया। शहरी गैर कानूनी स्कीम्स की तशहीर से मुतासिर होकर उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, PHA लाहौर ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर का बेड़ा उठा लिया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट PHA की जानिब से लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर का सिलसिला जारी है। मार्केटिंग 2 में तैनात फील्ड इंस्पेक्टर की मुबैना मिली भगत से लाहौर शहर की मसरूफ शाहराह पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बिल बोर्ड को देखा जा सकता है। सादा लोग शहरी इन तशहीरी बोर्ड से मुतासिर होकर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें प्लाट खरीद कर माफिया के हाथों लुट जाते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँ कि LDA की जानिब से तमाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन PHA ने उस लेटर को भी खातिर में ना लाया और लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर जोर शोर से जारी है। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आपने तफसीलन अपडेट किया।
वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर परथापर का महकमा आपाशी पंजाब में खुसूसी लेक्चर। पंजाब को दरपेश पानी के इंतजाम और तफसीली गुफ्तगू की गई। चीफ वाटर रिसीवर जोन्स नासिर इकबाल, चीफ रिसर्च राशिद अजीज, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खुरम अमीन और चीफ SPRU आमिर खान ने शिरकत की। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल और नहरी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और इनके हल के बारे में तजावीज़ पेश की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पार्लियामेंटेरीज की मुलाकात। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, सरदार इरफान डोगर और चौधरी जाफर इकबाल ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, सरदार इरफान डोगर और चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर ने मुलाकात की। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख जाफर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख जाफर। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पार्लियामेंटेरियंस MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक, MNA सरदार इरफान डोगर और साबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए डिलीवर किया है। हमारे साबका दौरे हुकूमत में मोटरवेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बनाई गई। मुल्क में गुर्बत के खात्मे और तमीर और तरक्की के लिए CPEC प्रोजेक्ट शुरू हुआ और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए चाइना के ताउन से बिजली के प्लांट्स लगाए गए। मौजूदा हुकूमत तलीम समेत आम आदमी की फलाह बहबूद पर फोकस कर रही है। नौजवानों की किरदार साजी के लिए चांसलर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मिलकर प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रहा हूँ। चैलेंजिंग सूरत हाल के बावजूद फेडरल HEC ने हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा किया। पिछली हुकूमत ने अवामी फलाह के मनसूबों को आगे नहीं बढ़ाया। उनका मजीद कहना था कि इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। सियासी पार्टियों के दरमियान इक़्तिसादी पॉलिसियों के तसलसल के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आपने अपडेट किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर प्रेस क्लब में अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन जुबैर अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, हमारे साथ जुबैर अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि मरकज़ी चेयरमैन हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के। आज इन्होंने बड़ी भरपूर एक कदम उठाया है। इसके लिए हम इनसे बात करेंगे कि ये अगला इनका क्या लाएमल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, गुजारिश ये है कि आज अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट ने पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त, हमारे सदूर यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे रूह रवां नवाज़ अंसारी साहब भी सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम बहुत से दिनों से सोच रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं और पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो हर रोज़ बढ़ता है। मजबूरी है पाकिस्तान की हुकूमतों की। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इमरान खान, नवाज शरीफ या क्या है, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जब एक इंसान जब फंस जाता है उसको निकलने के लिए वो हाथ पैर मारता है और अगर उसके हाथ पैर ठीक लग जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। हमारे अपने वसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है, प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो ये है कि ट्रस्ट लेवल नहीं है आवाम को किसी के ऊपर भी। आज हमने एक एजेंडा पेश किया है जिसमें आर्मी चीफ, ISI का सरबराह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चारों पांचों सूबे के वज़राए आला, मीडिया हेड्स, उसमें
अपोजिशन लीडर बशमूल इमरान ख़ान, उसमें सहाफ़ी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के 2 लोग, मतलब हमने कोशिश किया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बंदे शामिल करके एक कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी में 4 लोगों का एक अकाउंट खोला जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान। क्योंकि इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहने का मतलब है कि इनकी मुश्तरका गवर्नमेंट है इत्तेहादियों के साथ, तो इनका एक नुमाइंदा, अपोजिशन का एक नुमाइंदा, अदलिया का एक नुमाइंदा, आर्मी का एक नुमाइंदा। जब ये अकाउंट खुल जाएगा, जो पाकिस्तानी भी करोड़पति है वो अपनी जायदाद का 5% पाकिस्तान को बचाने के लिए देगा। वही सबसे पहले मैं हाजिर करूँगा, मैं पेश करता हूँ, मेरे तमाम एसेट्स डिक्लेयर हैं, वो 1 अरब के हैं, 2 अरब के हैं, 10 अरब के हैं, मैं 5% पाकिस्तान की सलामती के लिए देने को तैयार हूँ। जब ये मेक श्योर हो जाएगा कि ये पैसा वाकई पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रहा है, तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पोलियो से बचाव के लिए 5 रोज़ा मुहिम का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पोलियो से बचाव की 5 रोज़ा मुहिम बहावलपुर जिला की तहसील अहमदपुर शरीफ, बहावलपुर सिटी और तहसील बहावलपुर सदर में 28 जून से शुरू होगी। इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 5,13,000 ज़ायद बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो टीमें 28 जून को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएगी। इस सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर कमेटी रूम में एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्का हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकबल, DHO डॉक्टर खालिद रईस, CEO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, WHO के नुमाइंदगान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शरीफ, तहसील बहावलपुर सिटी और तहसील सदर में पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन पिलाई जाए। इस दौरान एक बच्चा भी पोलियो वैक्सीन की खुराक से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव की मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए महकमा से और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और स्टाफ अपना कलीदी किरदार अदा करें। पोलियो टीमों के अरकान भरपूर अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दें। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकबल ने बताया कि 28 जून से 30 जून तक घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि 1 और 2 जुलाई को कैचअप होगा। इस दौरान पोलियो वैक्सीन से किसी भी वजह से महरूम रह जाने वाले बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए वैक्सीन पिलाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 1438 मोबाइल टीमें, 91 ट्रांसफर टीमें और 120 फिक्स टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन खुरम स्टाद के साथ। और नाज़रीन, रावलपिंडी में महकमा वासा की जानिब से मानसून अलर्ट। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी धोखा निकला। ढोक, मंटगाल और गिरदनवाह के रहायशी शदीद अजियत से दो चार हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान बरी से, जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ढोक मंगताल के एक नशेबी ऐसे इलाके में मौजूद हूँ कि जहाँ पे सफाई के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है बहुत बड़ा एक गंदगी का बहुत बड़ा ढेर है और नाला लई है। ये नाला लई मैंने देखा कभी कुछ अर्सा कबल देखा था, बहुत पुरानी बात है। ये तकरीबन 40 फुट के करीब होती थी, लेकिन इसकी बात अगर की जाए तो महकमा RWMC, महकमा वासा, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या दीगर जो जिम्मेदारान है, किसी ने गुज़श्ता 4 साल से इस नाला लई की सफाई नहीं की। मानसून के कबल आने से पहले बहुत सी बातें की जाती हैं कि फलां जगह मशीनरी लगा देगी, फलां जगह इतने करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन समझ से बालातर बात है कि करोड़ों रुपया कहाँ लगाया। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा यहाँ पे गिर गया था। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, इस इलाके के सदर बख्तियार खान मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं, जी बख्तियार साहब आप ये बताएं, काफी अर्सा हो चुका है कि ये नाला इसी तरह जू का तू पड़ा हुआ है। दिन को जो बारिश हुई थी, सारा दिन जो बारिश रात को लगी थी, सारा इलाका डूब गया था। तो क्या वजूहत हैं कि इस इलाके का काम क्यों नहीं होता? अदनान बरी साहब, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया का बाद है कि 2021 में हमने मशीनरी भी मंगाया था, सफाई करवाए, लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ है। दोबारा इसको हमने मंजूर भी करवाया, लेटर भी हमारा पास लिखा है। सब कुछ नसैन मेट्रोपॉलिटन वाला था, TMA वाला था, तकरीबन खालिद साहब था, नात भी कीते, मीटिंग भी कीते, सब कुछ क्लियर किया, सानू लेटर भी दिया, 2-3 माह तक काम शुरू हो जाती। लेकिन अभी तक जी इस काम पे कोई तवज्जो नहीं हुआ है और ये काम जिस तरह था उस तरह रह गया। और अभी तक काम पे तवज्जो नहीं देगी। यहाँ पे इसी दूसरा इलाका जो है, ये UC 4 के जो हमारे सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बोल रहे थे नाला लई इस वक्त बहुत तुगयानी है, बहुत तेजी के साथ पानी जा रहा है। रियासत साहब मेरे साथ मौजूद है और नाला लई भी नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा भी यहाँ पे गिरा है। तो क्या वजूहत है, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा? और इतना अरसा गुजरने के बावजूद, लोगों के एहतजाज करने के बावजूद भी, बेटा आप स्क्रीन थोड़ा सा साइड पे खाई, जी बताएं। 3-4 साल से इधर कोई सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। अभी तक
अभी देखो ये नाला नहीं, जरा सी बारिश हुई है, इसके साथ ये सब बंद हो, आगे से पुली बंद है, पुली बंद, लोगों के घर में पानी वाले हैं। और यहाँ पे कोई इंतजामिया है। थोड़ी देर पहले एक बच्चा भी गिरा है इसमें, थोड़ी देर पहले इधर नाले में एक बच्चा गिरा है, और छोटे से बच्चे हैं, उसमें ये गंदगी का ढेर बना हुआ है, बच्चा गिरा है, फिर इन्होंने उठाया है मले वालों ने। तो वासा ने जो वादे किए, जो दावे किए वासा ने बड़े बड़े, क्या वो काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने इस इलाके के 2 जिम्मेदारों की बात सुनी। इस वक्त अहले इलाके की बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है जो बिहाइंड द कैमरा है, और मैं तमाम उन लोगों को कहता हूँ इस तरफ मेरे साथ आ जाएं, सारे लोग इस तरफ आ जाएं, ताकि उनको पता चले, छोटे मासूम बच्चे भी इस तरफ आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं सारे। जी नाज़रीन, ये सारे छोटे मासूम बच्चे मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं। इश्तिहारी और मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग, लकी मरवत और जिला टांग पुलिस को मतलूब इश्तिहारी और मनशियात फरोश को धर लिया गया, असलहा बरामद। मजीद जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। ज़ियाउद्दीन अहमद के खसूसी हिदायत पर ज़िला भर में मुजरिमान, इश्तिहारियों, मनशियात फ़रोशों समेत जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ बेला तफरीक कार्रवाई जारी रखते हुई SHO थाना नवरंग जावेद खान की क़ियादत में हमरा इंचार्ज नवरंग सिटी अतवरेमान बमै पुलिस पार्टी खुफिया इतला पर अमीर जान भट्टा खश्ते के करीब कार्रवाई करते हुई नवरंग पुलिस कत्ल के मुकदमे में और ज़िला टांग ताना गुल इमाम को चोरी और डकैती के 3 मुकदमात में मतलूब मुजरम इश्तिहारी मोहम्मद इलियास सकनम मलज़ई ज़िला टांग को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से पिस्तौल बमाया एमुनेशन बरामद कर लिया। एक और कार्रवाई में नवरंग पुलिस ने बोस मंडी के करीब मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुई मनशियात फिरोश रफ़ीउल्लाह जान सकना कोटका हस्पताल को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से 750 ग्राम चरस बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ थाना नवरंग में अलग अलग मुकदमात दर्ज करते हुए मुल्ज़िमान को हवालात मुंतकिल करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबरटेक सिंह राना शुएब महमूद की सरबराही में SHO थाना सिटी कमालिया वसीम असलम ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 55 लीटर शराब बरामद कर ली। मजीद जानते हैं सैयद रजा शाह की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबरटेक सिंह राना शुएब महमूद की सरबराही में सर्कल कमालिया SHO थाना सिटी कमालिया वसीम असलम, SI मान नवीद शहजाद, ASI व मुलाजमान पुलिस ने इलाका थाना सिटी कमालिया में कार्रवाई करते हुए शराब फरोश 2 मुल्ज़मान आमिर और वकास को काबू किया, जिनके कब्ज़ा से मजमूई तौर पर 55 लीटर शराब बरामद हुई, जिनमें मुल्ज़िम आमिर के कब्ज़ा से 50 लीटर जबकि मुल्ज़िम वकास के कब्ज़ा से 5 लीटर शराब। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराइम कंट्रोल करने के लिए नौशहरा पुलिस का एक और आसान इक़दाम, जिला भर में ऑटो रिक्शों को रूट परमिट देने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। अब नहीं चलेगी बगैर परमिट के कोई भी ऑटो रिक्शा। बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने के लिए नौशहरा पुलिस ने जिला भर के तमाम ऑटो रिक्शों को परमिट देने का ऐलान कर दिया। والا او نفس بیا یو یو اریو جانګری دا کین والا الادی دا فریشوله خپل لمبر دا مرود ورته نو دا خپل کلر ورته نو دا موږ خپل یو نشان لګو لکه جانګری والا با J1 J2 دسی دا غینو اد د شیشه باندې مو د موږ دی وا دی په شادم بیک سیټ د مملي او مخکې بملي او دا هغه د لګو جانګری دا لیک دا باندې ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد عمر خان کی ہدایت پر ٹریفک انچارج جمیل شاہ نے ضلع بھر کے تمام رکشہ یونین کے صدر اور ٹرانسپورٹران کو اعتماد میں لینے کے بعد 10 دن میں جہانگیرہ پبی اور نوشہرہ شہر میں تمام رکشوں کو رینالہ خرد میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خرد قمر محمود منج نے کی۔ واک کا مقصد عوام کو ڈینگی کے حوالے سے آگاہی دینا تھا۔ واک میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت محکمہ صحت کے اہلکاروں، لیڈیز ہیلتھ ورکرز، سول سوسائٹی اور شہری رینالہ خرد میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خرد قمر محمود منج نے کی۔
वॉक का मकसद अवाम को डेंगू के हवाले से आगाही देना था। वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर समेत महकमा सेहत के एहलकार, लेडीज हेल्थ वर्कर्स, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज ने कहा कि अपने घरों को, गमलों को और दीगर जगहों पर पानी खड़ा न रहने दें। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डेंगू से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का कहना है कि पेशावर में 27 जून से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम में बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं और इंसदादे पोलियो टीमों से ताउन करें ताकि पेशावर से पोलियो वायरस का खात्मा किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हमें पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा और हमारी मुश्तरका कोशिशों से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ का बर्न यूनिट एलाइड हॉस्पिटल का दौरा। अता तारड़ ने तेजाबगर्दी की शिकार खातून समेत तशद्दुद का निशाना बनने वाली दीगर खवातीन की अयादत की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलज़िमान की बरवक्त गिरफ्तारी पर फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अता तारड़ ने डॉक्टर जाहिद को हदायत दी कि मुतासरा खवातीन को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। इनका मज़ीद कहना था कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और ज़्यादती के केसेस पर हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़। हुकूमत की हिदायत पर पंजाब भर में 46 असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब होम्स अब्दुल्ला खान सुंबल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं अली इमरान चट्ठा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी इमरान। जी, इस वक्त ये तबादलों का नोटिफिकेशन जो है मंजरेआम पे आया है। इसकी रूह से ये 18 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया है, 28 अफसरान को नई तैनाती दी गई है, 17 अंडर ट्रेनिंग अफसरान जो है उनको भी पोस्टेड किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब से ये हुकूमत आई है ये ब्यूरोक्रेसी में तीसरी एक बड़ी अखाड़ बिछाड़ है और इसमें 46 के करीब जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको तब्दील किया गया है और ये तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो हुकूमती जमातों के जो MNAs और MPs हैं, ये बताया जा रहा है कि उनकी ख्वाहिशात पर तब्दील की गई। जी बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। वासा में सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ने लगा। सीनियर अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई। डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर अब्दुल लतीफ को नाकिस कारकर्दगी का बहाना बनाकर खुडे लाइन कर दिया गया। मोहम्मद दानिश सीनियर्स को ओवरलैप करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तैनात कर दिए गए। वासा में सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ने लगा। सीनियर अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई। डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर अब्दुल लतीफ को नाकिस कारकर्दगी का बहाना बनाकर खुडे लाइन लगा दिया गया। मोहम्मद दानिश सीनियर्स को ओवरलैप करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तैनात कर दिए गए। वासा में सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ने लगा। सीनियर अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई। डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर अब्दुल लतीफ को नाकिस कारकर्दगी का बहाना बनाकर खुडे लाइन लगा दिया गया। मोहम्मद दानिश सीनियर्स को ओवरलैप करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तैनात कर दिए गए।
पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन जोर शोर से जारी है। हल्का PP 237 मैक्लोडगंज में भी उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन में मसरूफ अमल हैं। हल्के में 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां फिदा हुसैन कालू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद आफ्ताब शाह, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मियां राशिद महमूद मलकू उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि इसका फैसला 17 जुलाई को इलेक्शन के नताइज पर होगा। मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नूबी पंजाब डॉक्टर एहसन सादिक ने साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस के अमले को मेहनत और लगन से काम करने पर खराज तहसीन पेश किया। इसी हवाले से देखते हैं मुल्तान से राना असलम की ये रिपोर्ट। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस के अमले को मेहनत और लगन से काम करने पर खराज तहसीन पेश किया और कहा, मुझे अपने तमाम मौजूदा स्टाफ पर फख्र है जिसकी मेहनतों से राउंड साल जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस की कारकर्दगी काबिल तारीफ रही। अवाम को इज्जत दी गई। अवाम की खिदमत और हिफाजत पुलिस का बुनियादी कर्ज है और इस सिलसिले में हम सब को बतौर टीम मिलकर काम करना होगा। ये बात उन्होंने साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस स्टाफ से माहाना मीटिंग करते हुए कही। डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि दफातर में सिर्फ ईमानदार अफराद को रखा जाएगा। बदयानत, सिफारशी, काले चोर अफराद के लिए दफातर में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर एहसान सादिक ने AI जज साहबान को हदायत की कि ऐसी मुस्बत हिकमत अमल पर गौर किया जाए। पाकपतन में गवर्नमेंट बाबा फरीद MCE लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी के हमरा इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर। शहर फरीद में तशनगाने ज़ौक़ के लिए गवर्नमेंट बाबा फरीद MCE लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न सलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी के हमरा लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस लाइब्रेरी के क़याम से तालीम की तरोीज में हमें बहुत हेल्प मिली है। आज तालीमी कॉन्फ्रेंस भी ये की गई है। तमाम असातिज़ा कराम को यहाँ बुलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा फीडबैक है। ये कमिटमेंट, ये रिजॉल्व का इजहार उनकी तरफ से किया गया है कि वो अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको ऐसे तरीके से मज़ीद। बाफरीद लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौका पर MC हॉल पाकपतन में तालीमी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई। तालीमी कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न सलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी और CO एजुकेशन अथॉरिटी अब्दुल मजीद खां बलोच व दीगर ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि लाइब्रेरी हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इकदाम है और इस इकदाम से न सिर्फ तशनगाने ज़ौक़ और नई नस्ल की इल्मी प्यास बुझेगी बल्कि लाइब्रेरी के इस्तेमाल की दम तोड़ती हुई तहजीब को भी जिंदा रखा जा सकेगा। तालीमी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि लाइब्रेरी के क़याम से तलबा में लर्निंग को भी फ़रोग़ मिलेगा। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग चौथे महीने में दाखिल हो गई। यूक्रेन का मशरिकी इलाका आजकल शदीद हमलों की जद में है। 24 फरवरी को शुरू होने वाली इस लड़ाई का मरकज अब यूक्रेन का मशरिकी इलाका डोनबास है। यूक्रेनी सदारती दफ्तर के मुताबिक डोनबास में होने वाली ये लड़ाई अब एक खौफनाक अरूज की तरफ बढ़ रही है। गुज़श्ता 4 माह के दौरान इस जंग के सबब यूक्रेन में हजारों अफराद मारे जा चुके जबकि कई मिलियन बेघर हुए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर अहमद शहजाद ने टीम से ड्रॉप किए जाने का जिम्मेदार साबिक हेड कोच वकार यूनुस को करार दे दिया। अहमद शहजाद ने कहा कि साबिक हेड कोच वकार यूनुस की जानिब से बोर्ड में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड में पेश की गई रिपोर्ट को खुद तो नहीं देखा, लेकिन एक नुमाइंदे ने बताया था कि उमर अकमल और मुझे आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। अहमद शहजाद ने कहा कि वकार यूनुस की वजह से उनका कैरियर तबाह हुआ। साइंसदानों ने दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया दरियाफ्त कर लिया जो इंसानी आंख से बगैर माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखा जा सकता है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस अजीबोगरीब बैक्टीरिया की लंबाई तकरीबन 1 सेंटीमीटर है जो इससे पहले दरियाफ्त शुदा बड़े बैक्टीरिया से 50 गुना है। रिपोर्ट के मुताबिक सफ़ेद लंबे धागे के मानद ये बैक्टीरिया समंदर की तह में मौजूद बोसीदा मैंग्रोव के पत्तों की सतह पर
पाया गया। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। दुनिया भर में मौजूद मदाहों के दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन की पॉप गुलकारी और डांस के लोग आज भी दीवाने हैं। पॉप मौसीकी के शहंशाह माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में गुलकार ने अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत इख्तियार की और अपनी बेहतरीन आवाज और मुनफरिद डांस से दुनिया भर में धूम मचाई। माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को मदाहों से बिछड़ गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।